Hello students, welcome back in another class of business studies. And today we are discussing about chapter number 5, that is the emerging modes of business. So in the past 20, 30 years, business has almost 100% changed itself. We have new modes coming up to do the business. So this chapter is going to orient you people about all those new avenues, all those new modes through which nowadays the business activities are happening. So let's start with the chapter. This chapter talks about e-business and e-commerce and subsidiary facilities of both of them. Talking about e-business, e-business can be defined as the conduct of whole industry, trade, and commerce using the computer networks. It means not even the buying and selling process, but all the subsidiary process in order to complete the business process. Everything is done through computer networks. Such type of business is termed as e-business. So it includes production, it includes buying, it includes selling, advertisements, distribution. Everything happens on the networks of the computers. What are the benefits of e-business? Let's discuss them. So first, it is very easily formable. The formation is so easy that you just need to open up a website on that particular portals. You just need to do some registrations, and as compared to establishing a proper traditional convention business, here you can directly open up that business just doing some clicks of the mouse. Second, it is convenient. As a physical business has a limitation of working hours, e-business provides you a facility where you can conduct the business activities 365 days, 24 into 7. That means there is no national holidays, there are no Sundays or nothing like that is happening. So e-business gives you the convenience of doing business trade coming outside of the hurdle of holidays. Third, the speed as compared to physical business activities, e-business is lot more faster as compared to a traditional business because everything happens just after few clicks of the mouse. So the order can be placed, the order can be shipped, everything happens on a computerized system. Less of human interference is involved. So from taking the order till the delivery of the order, the speed of completing the whole cycle, completing the whole transaction is lot much more faster. Fourth, it has global reach. That means a physical business has a geographical boundary. For example, a businessman operating from Delhi can maximum go up to the states of UP. He can go up to the states of, let's say, Haryana or Punjab. But again, moving to those cities, to those states, he has to sacrifice his daily business as well because he needs to travel to those places. So if you want to serve the customer of Haryana, you have to open up an outlet over there. If you want to serve a customer of Punjab, let's say, you have to go to Punjab as well. But when we talk about a e-business, this global boundaries are not there. So sitting at Delhi, if you have an e-business facility, you can serve the customers not only of your city, but you can serve the customers of the country as well as around the globe. This gives a huge benefit to e-business. That means you can cover every customer available on this planet Earth just sitting from your place. Movement towards a paperless society. That means when we are conducting e-business activities, because everything is happening electronically, there is no requirement of doing anything on papers. So less papers will be used. Imagine a company which is dealing with thousands of customers, how much paper it will be saving per year. So this reduces the stationery cost as well, and this is also good for the environment. So these are the benefits of e-business. Let's move on to the next part of this chapter. Although there are n number of benefits of e-business, but अच्छी चीजों के साथ बुराइयां भी तो होती हैं.
So let's discuss some of the limitations of e-business as well. The first and the biggest problem of e-business is low personal touch, or we can say low personal contact. यहाँ पर बायर और सेलर एक दूसरे को फिजिकली मिलते नहीं है, और क्योंकि वो एक दूसरे को मिलते नहीं है तो हम देख सकते हैं कि उनके बीच का पर्सनल कनेक्ट ऑलमोस्ट निल होता है. You are just talking to a number, you're just mailing to a mail address, you are not connecting physically with the seller. So आपका यहाँ पे ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो काफी लो हो जाता है. सेकेंड पॉइंट है कि ऑर्डर लेने से लेकर ऑर्डर डिलीवर करने में जमीन आसमान का फर्क होता है. दैट मीन्स आप ऑर्डर कुछ क्लिक्स पे कर सकते हैं, बट फिजिकली वो ऑर्डर आप तक जब तक पहुंचेगा उसमें काफी टाइम भी लगने वाला है. वेराज जब आप फिजिकली किसी शॉप पे जाते हैं, किसी रिटेलर के पास जाते हैं, तो आपका ऑर्डर आपको हैंड टू हैंड डिलीवर हो जाता है. ई बिजनेस के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर आप आज ऑर्डर करते हैं तो आपको डिलीवरी हो सकता है 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 7 डेज तक मिले, और कई बार तो अगर आप दूर से किसी ऐसे प्लेस से ऑर्डर कर रहे हैं जहां पे कोरियर फैसिलिटीज वीक हैं, हो सकता है मर्चेंट आपको 10-15 दिन में वो पर्टिकुलर चीज को पहुंचाए. इट मीन्स कहने के लिए स्पीड बहुत ज्यादा हाई है, बट जब डिलीवरी की बात आती है तो डिलीवरी इनकी फिजिकल बिजनेसेस के कंपैरिजन में काफी वीक है. थर्ड, जब तक किसी भी पार्टी, जो भी पार्टीज ई बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे आर नॉट वेरी वेरी मच इनटू टेक्नोलॉजी, दे आर इनकेपेबल ऑफ द टेक्नोलॉजी, दे डोंट हैव द टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, वो वहां पर लैक करेंगे. इट मींस ई बिजनेस को का बेनिफिट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो टेक्निकली एडवांस हैं, जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज है. एक रेगुलर सेलर, एक रेगुलर बायर इस पूरी दुनिया से दूर रहेगा अगर उसे टेक्निकली वो एडवांस नहीं है, वो नहीं समझता ई बिजनेस को, ई कॉमर्स को. इसके साथ ही साथ बहुत बार ऐसा देखा गया है कि देर आर मेनी केसेस जहां पे इलेक्ट्रॉनिकली काफी फ्रॉड्स हुए हैं, बिकॉज हम ये नहीं जानते हैं कि हु इज द सेलर, फ्रॉम विच सिटी ही इज हेडिंग द बिजनेस, और जो कस्टमर है वो किसी और जगह पे लोकेटेड है. ही कैन नॉट मीट द सेलर, ही इज जस्ट टॉकिंग हिम विथ हिम वाया चैट्स और फोन कॉल्स और वाया ईमेल्स. तो जैसे कि मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया कि पर्सनल टच बहुत वीक है, इसीलिए यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं, और ये हुआ भी है क्योंकि द पार्टीज, द सेलर्स आर मेनी टाइम्स नॉन ट्रेसेबल. वी कैन नॉट लोकेट देयर ओरिजिनल लोकेशन. हो सकता है उन्होंने फेक आईडीज बनाई हो सकता है उन्होंने फेक अपना रजिस्टर्ड एड्रेस बताया हो, एंड इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स बाय वायरसेस, बाय हैकिंग योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आए दिन इंडिया में होते रहते हैं. तो दिस इज अ वेरी ह्यूज रिस्क ऑफ ई बिजनेस. Next, people resistance. Yes, talking about India, where we have 1/3 population living below the poverty line, and again a huge proportion of the population which is lower middle class or middle class. ऐसे लोगों का वैसे भी टेक्निकली ये लोग उतने एडवांस नहीं होते हैं. सो ये भी देखा गया है कि people actually resist of going to e-business websites, बिकॉज उनको ट्रस्ट नहीं है. वो सेलर को जब तक देखेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, शॉप तक नहीं जाएंगे, तब तक उनको ट्रस्ट होता नहीं है. तो एक्चुअली दे रेजिस्ट टू डू ट्रेड ऑन द ई बिजनेस प्लेटफॉर्म्स. एंड लास्ट, एथिकल फॉलोआउट्स. दैट मींस कि ई बिजनेस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो आपकी पर्सनल डेटा को हैक कर सकता है, आप पे हमेशा इलेक्ट्रॉनिकल आई बना के रख सकता है, आपकी सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती हैं. दे कैन रीड योर मेल्स, दे कैन रीड योर एसएमएस, they can read your personal information. That is ethically very wrong, and that data at times can be used for something else, which again is a risk, is a threat to the buyers. So these are the limitations of e-businesses. Let's move on to the difference between e-business and e-commerce. When we talk about e-business, so e-business means the complete process of business, the complete business activities from production, distribution, promotion, everything happens electronically. Whereas when we talk about e-commerce, that means the only process of buying and selling is happening electronically. It means the production is physically happening, the selling is electronically happening, the distribution is physically happening. Scope, we can say e-business has a wider scope and e-commerce is a part of e-business, whereas e-commerce has a narrow scope because it is a wing, a part, a branch of e-business. Requirement, it may involve use of internet, intranet and extranet. So all sort of internets are required to do e-business.
That can be internet, that can be intranet, that is within the organization, and extranet as well. Whereas e-commerce is an activity which is completely done by using the internet facilities. E-business also includes internal and external processes of the business, whereas e-commerce activities are only confined to external oriented processes. It means e-commerce is more of an external process where you connect with the customer, external customer, you take the order, and then again you connect with the seller, you deliver the order to them, you delegate the order to them, and the seller will ship that order to the place of the customer. So actually e-commerce websites or e-commerce companies are just a kind of arbitrators. They just arbitrate the whole process. They create a link, a chain between a seller and a buyer. So what is the scope of e-business? Let's talk about them. First, it can be done B2B, that is business to business commerce. So what is that? Business to business refers dealings between the business firms, where a firm deals or do transactions with another business firm. Second, the networks of computers may be used for placing the orders, monitoring the production processes, and delivery of the components as well. So in B2B, everything happens on the network of computers between the two firms. Even it also strengthens and improves the distribution systems by exercising the real-time control over the stocks in transit. So both the business houses can have everything done happening across the networks of the computers, and both of the firm have 100% control over their stock management. The term e-commerce originally means electronically data interchange. That means by using EDI networks, you can place orders and you can also exchange invoices. Talking about the second type of e-business is B2C commerce, that is business to customers, when the transactions happens between a firm and the customers. It involves online shopping, like we have seen many of the e-commerce websites like Amazon is there, Flipkart is there, Myntra is there, Tata Click is there. So n number of websites are there nowadays, which is directly dealing with the customers. They take the orders online and they deliver it physically to your place. At times, some electronic goods can be or directly bought and gets delivered if you buy any music subscriptions or film subscriptions, something to entertain. So those sort of things can be online delivered. Third, the business firms can be in touch with the customers round the clock because it is B2C channel where you have 24 into 7 toll-free numbers available. So customers can directly talk to them. They have a call center, dedicated call center to the customers, so they can resolve all the queries, all the issues of the customers, which is not possible in the physical shopping. And third is customer to business as well. So there is a B2C relationship also, can be termed as customer to business relationship, where a customer is free to shop accordingly, according to his time, according to his mood, whatever he wants to look, he can look. And by using these electronic websites, e-commerce websites, कॉमर्स में जो कस्टमर्स हैं उनको ये पावर मिलती है कि वो उस पर्टिकुलर गुड्स को कितनी भी बार देख सकते हैं, कहीं कहीं पे भी जाके मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाके उस पर्टिकुलर गुड्स के बारे में सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं, एंड दे आर द वन हु कैन चूज एंड फाइनली डिसाइड फ्रॉम वेयर दे नीड टू बाय द स्टफ. आगे चलते हैं. देर इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा बी कॉमर्स. उसमें क्या होता है, इंट्रा बी में सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो कि हैं, जैसे कि मैनेजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मैनेजिंग ऑफ डीलिंग्स डिपार्टमेंट्स, ये सब कुछ वाया इंटरनेट होता है. मतलब द कंप्लीट बिजनेस रन्स ऑन अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विद इन द कंपनी. मतलब सारे के सारे कंपनी के अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में भी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, वो वाया इंटरनेट किया जाता है. इंट्रा बी कॉमर्स में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज नहीं है, साथ ही साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, प्लांट एंड मशीनरी का रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, एवरीथिंग is get recorded on the network of computers. और सारे के सारे functions business के अंदर भी, organization के सारे events, transactions, activities, they all do happen on the internet.
Then we have B2 e-commerce as well, where the firm interacts with the employees by using a private networks. इसमें हम VPN provide करते हैं employees को, that is virtual private network, and that enables the employees that they can work from anywhere in the world. VPN को यूज कर आप अपने एम्प्लॉयज को कहीं पे भी बिठाकर, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आपका एक फिजिकल ऑफिस हो जहां पे एम्प्लॉयज विजिट करें। रादर आपका पूरा का पूरा ऑफिस जो होगा, पूरा का जो बिजनेस होगा, वो VPN के थ्रू रन होगा। इट मींस एम्प्लॉयज अपने घर बैठे आपके लिए काम कर सकते हैं। सो ये तो है डिफरेंट डिफरेंट स्कोप्स ऑफ बिजनेस। द लास्ट वन is C2C, that is customer to customer. We have seen OLX, we have seen eBay, all those sort of websites जहां पर एक customer who wants to sell something puts that thing list that thing onto that website, और जो कस्टमर बाय करना चाहता है वो वहां पर आके उससे बाय कर सकता है, डायरेक्टली डील हो जाती है। तो एक्चुअली C2C कॉमर्स जो है वो दो कस्टमर्स को एक साथ जोड़ने के लिए दिया गया एक प्लेटफॉर्म है जहां पे दो कस्टमर्स आकर आपस में डील कर सकते हैं। इसके बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं, जैसे पेपल है, पेटीएम है, फोन पे है। इनके जो वॉलेट सर्विसेज है जहां पर आप किसी और को अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो बाय यूजिंग दीज मीडियम्स, फोन पे, पेटीएम, यू कैन ट्रांसफर द मनी एज वेल। तो इस तरीके से C2C ने दो कस्टमर्स को मिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया है, और बाय यूजिंग दीज डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स आज की तारीख में दो कस्टमर्स एक दूसरे से विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, विदाउट एनी टेक्निकल इश्यूज एक दूसरे से ट्रांजैक्शंस बहुत इजीली कर सकते हैं। Now let's see what is the basic difference between a traditional business and a e-business. So अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस जो है उसका प्रोसीजर ऑफ सेटिंग अप इज बिट डिफिकल्ट, बिकॉज आपको एक प्लेस हायर करना है, यू हैव टू पुट द इंफ्रा एज वेल। तो उस तरीके से उसमें टाइम लगता है, कैपिटल बहुत ज्यादा लग जाता है, रिस्क बहुत सारा रहता है। अगर आपने सही प्लेस नहीं चुनी तो हो सकता है आप सफर करेंगे कि आपका बिजनेस जो है बहुत अच्छा नहीं रन हो। वेराज ई बिजनेस में ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ इंफ्रा, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ वेरी लैविश ऑफिस, हैव अ वेरी लैविश इंफ्रा। तो आपकी कॉस्टिंग्स कम हो जाती हैं और आप बहुत सारे बर्डन से बाहर आ जाते हैं। फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करें तो ट्रेडिशनल बिजनेस का एग्जिस्टेंस ही फिजिकल है। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस है तो वो इसलिए है क्योंकि फिजिकली कहीं ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहां पे कस्टमर्स जाना पसंद करते हैं। वराज ई बिजनेस में कोई फिजिकल लोकेशन की जरूरत नहीं होती है, एवरीथिंग हैपेंस ऑन द वेबसाइट्स। लोकेशनल रिक्वायरमेंट्स की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ता है ट्रेडिशनल बिजनेस में कि रॉ मटेरियल आपको जहां से मिल रहा है वो आपके पास हो, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जो प्रोडक्ट जिस मार्केट में बिक रहा है वो मार्केट भी आपके आसपास होना चाहिए, और यू हैव टू लोकेट योरसेल्फ इनसाइड द मार्केट सो दैट कस्टमर्स आपको इजीली लोकेट कर पाए। पर ई बिजनेस में ये सारी प्रॉब्लम्स भी नहीं है। हो सकता है रॉ मटेरियल किसी और कंट्री से लेकर आ रहे हो और आपके कस्टमर्स कहीं और किसी और कॉर्नर ऑफ द ग्लोब में हो, बट स्टिल सिटिंग इनटू एनी कंट्री you can get that buyer connected to that seller directly. कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, मैंने जैसे अभी अब आपको बताया कि इन द ट्रेडिशनल बिजनेस देयर इज वेरी ह्यूज कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, बट ई बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट बहुत लो है। यू जस्ट नीड टू स्पेंड ऑन द वेबसाइट क्रिएशन, द कोडिंग, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ऑपरेशनल कॉस्ट की भी अगर हम बात करते हैं, सो मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट या एनुअल ऑपरेशनल कॉस्ट ट्रेडिशनल बिजनेस की एज कंपेयर टू ई बिजनेस आर वेरी हाई, बिकॉज यहाँ पर आपको फिजिकल एम्प्लॉयज हायर करने हैं, यू हैव टू पे द सैलरीज, यू हैव टू पे द रेंट्स, यू हैव टू पे द स्टेशनरी फॉर दैट कम्युनिकेशन एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। देन प्रोडक्शन के ऊपर खर्च करना है, मार्केटिंग के ऊपर खर्च करना है। जबकि कि ई बिजनेस में ये सब कुछ आप आउटसोर्स कर देते हैं, यू जॉइन हैंड्स विद द डिफरेंट डिफरेंट आउटसोर्स कंपनीज, और एल्स कुछ फीचर्स आप अपने पास रखते हैं, बाकी सब आप हायर कर लेते हैं एट अ लो कॉस्ट। तो यू हैव डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स, सो आपका कॉस्टिंग यहाँ पे लो हो जाता है। So these were the differences between traditional business and e-business. मूविंग फर्दर, यहां पर ट्रेडिशनल बिजनेस में इनडायरेक्ट थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, जो यू नीड होलसेलर्स एंड रिटेलर्स टू कंप्लीट द प्रोसेस। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो कस्टमर तक आप नहीं पहुंच सकते, यहां पर आपको होलसेलर्स और रिटेलर्स की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। पर अगर हम ई बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर आप मैन्युफैक्चरर होने के बावजूद वाया योर वेबसाइट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद योर कस्टमर्स, सो ऑल दोज मिडिलमैन आर नॉट नाउ रिक्वायर्ड टू डू द बिजनेस एक्टिविटीज। इंटरनल कम्युनिकेशंस की भी अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे यहाँ पे एक हायरार्की
फॉलो की जाती है ट्रेडिशनल बिजनेस में। देयर इज टॉप लेवल, देयर इज मिडिल लेवल, देयर इज लो लेवल एंड देयर इज अ चेन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसकी वजह से कई बार कम्युनिकेशन डिले भी होते हैं। Whereas ई बिजनेस में यहाँ पे डायरेक्ट और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायगोनल every kind of communication is possible. You have the mail IDs of your top level management as well, so every employee can connect with every other employee just by mails or phones or anything like that. रिस्पॉन्स टाइम की अगर हम बात करते हैं, कस्टमर्स को मिलना, उनको रिस्पॉन्स देना, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का टाइम ट्रेडिशनल बिजनेस में एज कम्पेयर टू ई बिजनेस काफी ज्यादा लंबा होता है। कई बार कस्टमर्स ज्यादा भीड़ होती है, फॉर एग्जांपल, सो दे इग्नोर दोज प्लेसेस जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ है, भीड़ भाड़ है। तो कई बार हमें ट्रेडिशनल बिजनेस में हमने ये देखा है कि उन्हें ये लॉस झेलना पड़ता है कि एट टाइम्स अगर बहुत सारे कस्टमर्स आ गए, सो दे हैव टू सैक्रिफाइस सम ऑफ द कस्टमर्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक देम वेट फॉर आवर्स। जबकि के डायरेक्ट शॉपिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में, ई बिजनेस में आप सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे लाखों करोड़ों कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट पे सर्व कर सकते हैं और सारे कस्टमर्स कंटिन्यूअसली आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर ये वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज यहाँ पे जो पोजीशंस हैं, जॉब पोजीशंस हैं, वो डाउन से अप की तरफ चलती हैं और पावर्स और सैलरीज भी इसी तरीके से आगे बढ़ता है। जबकि के यहाँ पर अगर हम ई बिजनेस की बात करते हैं तो एवरीवन हैज their own importance, everyone has their own area of operations. so यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो भी हॉरिजॉन्टल है और जो कमांड का जो पैटर्न है वो भी हॉरिजॉन्टल होता है। there is no concept of vertical communications, rather they believe in horizontal growth. देन अगर हम बिजनेस प्रोसेस एंड लेंथ ऑफ द साइकिल की बात करते हैं तो यहाँ पर बिजनेस प्रोसेस भी लंबा है और साथ ही साथ जो साइकिल है, बिजनेस साइकिल है, वो बहुत लंबी होती है। परचेज, प्रोडक्शन, इन सब में काफी टाइम लगता है। जबकि के यहाँ पर बिजनेस साइकिल शॉर्ट होती है ई बिजनेस में। जस्ट आफ्टर टेकिंग फ्यू क्लिक्स यू कैन हैव द ऑर्डर एंड इन फ्यू डेज यू रिसीव द ऑर्डर ऑल्सो। साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमर के साथ आप 24/7 कनेक्टेड रहते हैं, जबकि के फिजिकल शॉप्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन अ ट्रेडिशनल बिजनेस एंड अ ई बिजनेस। Let's move on to the next segment of the chapter, that is what are the steps involved in doing an online transaction. So we all have already done this. I am damn sure आप लोगों ने Amazon पे, Flipkart पे सब जगह शॉपिंग की हुई है ऑलरेडी। सो ये बहुत कुछ नया नहीं है, ये आपको ऑलरेडी आता है। बट लेट्स गो थ्रू द सिस्टमैटिक ऑर्डर। सो वन नीड्स टू गेट द रजिस्ट्रेशन डन। आप जिस भी वेबसाइट पे जाएंगे वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, साइन अप करना पड़ता है। यू हैव टू क्रिएट अ वर्चुअल अकाउंट ओवर देयर। उसके बाद यू कैन प्लेस द ऑर्डर बाय selecting the article, adding it to your cart and you can place the order. उसके बाद आप पेमेंट मैकेनिज्म पे पहुंच जाते हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी आप पिक कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया और डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप पेमेंट करते हैं सो फिर फाइनली आपका जैसे ऑर्डर प्लेस होता है तो दे गिव यू अ डिलीवरी डेट आफ्टर टेकिंग योर एड्रेस, शिपिंग एड्रेस। और अगर वो विद इन 2 days है, 3 days है, जितना भी एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम होता है वो आपको दिखा दिया जाता है और आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाती है आपके ट्रांजेक्शन की एंड देन यू कैन ट्रैक योर ट्रांजेक्शन। वंस द ऑर्डर इज डिलीवर्ड आपको उनके एंड से कॉल, मैसेजेस, ईमेल सब कुछ आ जाते हैं और आप वो जैसे ही कलेक्ट करते हैं अपना ऑर्डर तो उनकी वेबसाइट पे ऑर्डर डिलीवर्ड दिखाने लगता है। तो दिस इज हाउ एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हैपेंस एंड आई एम डैम श्योर ये सब आपको ऑलरेडी पता है। बट हाँ, इस पूरे बिजनेस में रिस्क भी है। बिजनेस है तो रिस्क तो होगा ही होगा। तो क्या क्या रिस्क होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो 2 मेजर टाइप ऑफ रिस्क हम देख सकते हैं यहाँ पे। एक होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शनल रिस्क, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि ऑर्डर आपने दे दिया है बट कस्टमर, आपने ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर डिलीवर भी कर दिया, बट कस्टमर, या तो कस्टमर बोलता है कि मैंने तो ऑर्डर कभी दिया ही नहीं था, या अगर आपने ऑर्डर डिलीवर भी कर दिया तो कस्टमर स्टार्ट्स रिफ्यूजिंग कि आई हैव नॉट रिसीव्ड द ऑर्डर। सो देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू डिफॉल्टिंग ऑफ ऑर्डर टेकिंग एंड ऑर्डर गिविंग एज वेल। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट ने आपका ऑर्डर वहां पे दिखाया, आपने उसे बुक कर दिया, आपने उसे प्लेस कर दिया, पेमेंट भी कर दी, बट स्टिल वो आपके अकाउंट में ना दिखाए। हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह ऐसा भी हो सकता है। डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी एज वेल, व्हेन द इंटेंडेड डिलीवरी डज नॉट टेक प्लेस, गुड्स आर डिलीवर्ड एट रॉन्ग एड्रेसेस और the goods are not those which you
ऑर्डर्ड एक्चुअली। तो कई बार ये भी देखा गया है कि ई बिजनेस वेबसाइट्स आपका ऑर्डर कहीं और पहुंचा रही है, आपने एड्रेस कहीं और डाला है, आपका ऑर्डर डिलीवर कहीं और हो रहा है, या ये भी देखा गया है कि जो भी आपको दिखाया गया बताया गया ऑन द वेबसाइट एक्चुअली वो चीज वहां पर डिलीवर नहीं हुई है, उसकी क्वालिटी अलग है, उसका कलर अलग है। एक्चुअली कई बार तो वो आइटम ही अलग है, जो आपने ऑर्डर किया था वो नहीं है, उसकी जगह आपको कुछ और डिलीवर कर दिया गया है। एंड लास्ट, पेमेंट रिलेटेड काफी इश्यूज देखे जाते हैं। कई बार सप्लायर ये बोलता है कि दे हैव नॉट रिसीव्ड योर पेमेंट बट योर यू हैव पेड इट, आपको पता है आपके अकाउंट से वो डेबिट हो चुका है, बट सेलर ये बोल रहा है कि मुझे पेमेंट नहीं मिला है। सो कई बार ये होता है, और ये सेम चीज रिफंड में भी होता है। व्हेन यू रिफंड सम आर्टिकल्स, so websites will claim that they have delivered the money into your account, but actually you have not received the money. So there are three to four major technical problems due to some transactions, जैसे कि ऑर्डर टेकिंग और गिविंग में इश्यूज हो सकते हैं, डिलीवरी में डिफॉल्टिंग हो सकती है, और पेमेंट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात वायरसेस। हमें पता है ऑनलाइन दुनिया का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है वायरस। सो वायरस जो होता है उसकी वजह से काफी सारी चीजों पे अटैक हो सकता है, आपका पर्सनल डेटा चोरी किया जा सकता है, आपके सिस्टम्स को हैक किया जा सकता है, आपके फोल्डर्स, आपकी आपकी फाइल्स वो डिलीट हो सकते हैं, आपका सिस्टम करेक्ट हो सकता है, आपका पूरा का पूरा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक किया जा सकता है। इवन हैकिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। हैकिंग इज लाइक taking over the control of the device of the customer. So at times there are some phishing websites. Phishing मतलब fake websites होती हैं जो आपको दिखाती हैं कि वो ई बिजनेस की तरह काम कर रहे हैं, बट जैसे आप उसमें अपना डेटा डालते हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सब कुछ लिया जा सकता है और उसको मिसयूज किया जा सकता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है, और आपके पूरे पूरे सिस्टम को हैक किया जा सकता है, और उसको हैक करने के बाद उसको मिसयूज भी किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी, इसके ऊपर भी काफी रिस्क है, क्योंकि ऑनलाइन एजेंसीज आपसे बहुत सारी चीजों की परमिशन मांगती हैं। ई बिजनेस जब आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो दे आस्क फॉर द परमिशन ऑफ योर लोकेशन, फॉर योर मैसेजेस, फॉर योर कैमरा, फॉर योर पिक्चर्स, सो एवरीथिंग यू हैव टू अलाउ टू द वेबसाइट इन ऑर्डर टू प्लेस द ऑर्डर। और जब आप ये सारी परमिशन उस वेबसाइट को दे देते हैं तो आप अननेसेसरी अपना पूरा डेटा ओपन कर देते हैं फॉर दैट वेबसाइट, सो दैट वेबसाइट can scan all the things, your personal informations, your personal images, your personal text, chats, everything gets into the hands and control of that particular e-business company, which is a huge risk in the sense of privacy. So ये सारे रिस्क हैं ई बिजनेस के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज आउटसोर्सिंग। सो व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग इज नथिंग बट delegating some part of business or some part of some wings of the business to a different party which is capable of doing those activities. So इसका मतलब ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट आउट कर देते हैं अपनी उन नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज को जिसमें आपको लगता है कि द थर्ड पार्टीज और दो स्पेशलिस्ट आर मोर capable of doing that particular work. For example, we have seen in the car industries, analytical industry हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में ही। So analytical industries क्या करती हैं? वो पूरा का पूरा काम आउटसोर्स ही करती हैं। Like if I talk about a laptop making company, let's take an example of Lenovo. तो Lenovo क्या करता है? Lenovo जो है कैमरा किसी और से बनवा रहा है, उसकी जो डेस्कटॉप की जो लैपटॉप का जो पूरा पूरा बॉडी है वो कोई और बनाकर दे रहा है, उसके अंदर जो लगा हुआ चिप है वो इंटेल से बनकर आ रहा है, उसमें अगर वो कोई इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट्स लगवा रहे हैं तो वो किसी और से बनाकर आ रहा है, उसका ट्रैक पैड कोई और बना रहा है। तो इस तरीके से यू यू आउटसोर्स दोज processes to those vendors who are specialist in making that particular item. तो उससे ये होता है कि आपकी कॉस्ट गिर जाती है, आपको एक्सपर्टाइज मिल जाता है, एक्सपीरियंस उनका ज्यादा है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज सेटिंग अप एवरीथिंग and controlling everything can lead to पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, क्योंकि आप कोई एक चीज बहुत अच्छी बना सकते हैं पर आप सारी चीजें एक साथ अच्छे से नहीं बना सकते। सो दिस इज मोर पॉपुलर इन द एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, बट कहीं ना कहीं आज की तारीख में हर बिजनेस कुछ ना कुछ आउटसोर्स करता ही करता है। अगर हम फीचर्स की बात करें तो आउटसोर्सिंग का मतलब ही है कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। इट मींस कुछ फंक्शंस को उन बिजनेस हाउसेस को दे देना जो सिर्फ वही काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कार मेकिंग कंपनी है तो आपने देखा होगा टायर जो है, कार का जो टायर है वो कार मेकिंग कंपनी का नहीं होता, वो किसी और कंपनी का होता है, बिकॉज द कार मेकिंग कंपनी कैन नॉट मेक टायर्स, कैन नॉट मेक सीट्स, कैन नॉट मेक हेडलाइट्स, they are more focused in building the engine of the car, but rest of the things are outsourced.
जनरली हमने देखा है नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटीज को ही आउटसोर्स किया जाता है। अब लेट से अगर हम एक कार मेकिंग कंपनी है और वो अपना इंजन ही आउटसोर्स करने लग जाए, इंजन ही कहीं और से लेने लग जाए, तो वो उस टेक्नोलॉजी का सही यूज नहीं कर पाएंगे और हो सकता है उनके बिजनेस सीक्रेट्स शेयर हो जाए। सो जनरली उन्हीं चीजों को आउटसोर्स किया जाता है जो कि नॉन कोर एक्टिविटीज होती हैं। कभी भी सेलिंग आउटसोर्स नहीं किया जाएगा, कभी भी आपका जो कोर है, आपके ऑपरेशन का जो कोर है, वो आप डेलीगेट नहीं करोगे, आउटसोर्स नहीं करोगे। आप उन्हीं सारी चीजों को आउटसोर्स करोगे जिनमें आपके हिसाब से द बिजनेस थिंग्स दैट डूइंग दिस एक्टिविटी इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, those types of things will be outsourced. Last but not the least, processes may be outsourced to a captive unit or a third party. Yes, हम जनरली उन्हीं लोगों को आउटसोर्स करते हैं जो उस पर्टिकुलर फंक्शन को करने में एक्सपर्टाइज्ड हैं और ऑलरेडी उसी चीज को लार्ज स्केल पे काफी टाइम से कर रहे हैं। सपोज यू आर अ कार कंपनी, you'll be delegating your tires or tire making process to MRF or to C8 or to Apollo, because these companies are the companies which are exclusively into the टायर मेकिंग प्रोसेस। तो आप किसी रैंडम पर्सन को नहीं देते, आप कोई नई यूनिट नहीं स्टैब्लिश करते कि वो टायर बनाने लगेगा अब आपके लिए, नहीं, यू डोंट डू दैट। एक्चुअली यू डेलीगेट द वर्क टू दोज यूनिट्स which are exclusively doing that work, who are specialists in doing that particular work. Now, next move on to the scope of outsourcing. So talking about the scope of outsourcing, generally the outsourcing is done into the four different segments. A company can outsource the manufacturing process, that is known as contract manufacturing, where the second company will be manufacturing for the first company, as in if the company does not want to locate the factory, does not want to invest into the production process, so they can get it manufactured from the outsourced partners. Second is contract research. At times we all know that every company needs to have innovation, needs to have new products coming up. So many of the companies actually hire a team or hire a company for just for doing the research for their products, and according to their research they launch the new products in the market. Contract sales, this can also be done where the company is more focusing on the production process, research process, and they're not very good in sales, so they can hire some marketing persons, hire some marketing people or marketing companies where they can market their products and they can sell their products as well. And the last is informatics. So these are the companies that provide the data from the customers. They can do surveys, they can collect different data points from all the customers of your company, and they can give you back the feedback of your products, according to which you can mold, you can recreate the different products. So these are the scopes of outsourcing. Why actually we need outsourcing? So first, it is all about the complete attention on the core activity. So none of the business house wants to waste resources, waste time on doing all those non-effective activities which is not the core part of the company. सो कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि वो अपनी कोर एक्टिविटीज से हटकर बाकी सारी चीजों में पैसा खर्च करे, टाइम खर्च करे, जो कि उनका वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा। सो इसीलिए हम ऐसी चीजों को आउटसोर्स कर देते हैं जो कि हमारे लिए नॉन कोर है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ताकि हम उन चीजों पर फोकस कर पाए जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Quest for excellence, yes, when you outsource the things to the companies, to the outsourcing partners, they are the ones who are doing that activity since years, since ages, so they are more specialist in doing that work. That is why आप ये भी चाहते हैं कि आप जब आउटसोर्स करें तो आपको जो भी प्रोडक्ट आउटसोर्स करके मिले वापस आपके पास आए वो बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। सो इफ द कंपनी नोज दैट वी कैन नॉट डू दिस वर्क, they delegate it to those companies who are best in doing that work. Cost reduction, yes, in setting up every production process, every department into production process involves huge costs. Whereas अगर आप सिर्फ कोर एक्टिविटीज पे ध्यान दें और बाकी सारी चीजों को आउटसोर्स कर दें तो आपकी कॉस्टिंग्स काफी कम हो जाएंगी, क्योंकि फिर आपको उन सारी चीजों का प्रोडक्शन एक्सपेंस, सैलरीज, वेजेस, इन सब का ध्यान नहीं देना पड़ेगा। Growth through alliance, yes, when you will tying up with a customer, with a company which is a specialist in doing that work, इस तरीके से आपको भी टेक्निकल एडवांटेज मिलता है, आपके प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ेगी और दोनों ही कंपनी की ग्रोथ म्यूचुअली होगी।
एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प होता है, बिकॉज अगर आप आउटसोर्सिंग करते हैं तो आप जिस भी कंट्री को आउटसोर्स करते हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती हैं. लाइक इन इंडिया वी कैन सी द इंडिया इज हब फॉर IT outsourcing place. So India is now a world leader in IT services software development, because जितनी भी बाहर की कंपनीज हैं उन्होंने इंडिया को अपना आउटसोर्स पार्टनर बनाया हुआ है. एंड इंडियन पीपल आर वेरी गुड इन nowadays very good in developing the softwares and providing the IT services. But yes, there are some limitations of outsourcing as well. पहली चीज ये है कि अगर आप कुछ भी आउटसोर्स करते हैं तो आप अपने बिजनेस के प्रोसेस को आउटसोर्स कर रहे हैं. इट मींस आपके बिजनेस के सीक्रेट्स अब शेयर होने वाले हैं. तो अगर वो फर्म आपके किसी कॉम्पिटिटर के लिए भी काम कर रही है और आपके लिए भी काम कर रही है, सो देयर आर हाई चांसेस that the secrets will be shared. And if that company gets manipulated by the second competitor of yours, हो सकता है आपके सीक्रेट्स वहां पे कॉपी पेस्ट कर दिए जाए. स्वेट शॉपिंग, दिस इज अ कॉन्सेप्ट वेयर the host country which is getting the outsourcing contracts, उनका पूरा मैन पावर सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज में इन्वॉल्व हो चुका है जो हो सकता है उस कंट्री की नीड ना हो. फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या IT सर्विसेज, इंडिया का जो पूरा का पूरा यूथ है, अगर मान लो वो सिर्फ इन्हीं प्रोसेसेस में लग जाएगा, तो इंडियन इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट है लाइक एग्रीकल्चर है या बाकी बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो सफर होने लगेंगी. वहां पर हमें स्किल्ड लेबर मिलना बंद हो जाएगा. सो इन दिस वे एक्चुअली द कंट्री विच इज गिविंग द आउटसोर्सिंग सर्विसेज वो लैक करने लगेगी बाकी सारे एरियाज में, क्योंकि उसका मैन पावर आउटसोर्सिंग में लगा हुआ है. साथ ही साथ एथिकल कंसर्न्स भी होते हैं, बिकॉज जनरली आउटसोर्सिंग उन्हीं कंट्रीज को की जाती है जो कि अंडर डेवलप्ड है या पुअर कंट्रीज हैं, क्योंकि वहां लेबर सस्ता मिल जाता है, फीमेल लेबर्स मिल जाती हैं, चाइल्ड लेबर्स मिल जाते हैं. इसलिए जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो ऐसी जगह पे स्टैब्लिश करते हैं जहां पे लेबर कंपैरेटिवली चीपर है. एंड साथ ही साथ होम कंट्रीज में रिसेंटमेंट भी देखा गया है कि अगर आप इंडियन ब्रांड है और आप आउटसोर्सिंग किसी और कंट्री से करवा रहे हैं, इट मींस आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उस कंट्री को दे रहे हैं. सो एट टाइम्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया विल स्टार्ट boycotting your products because you're not generating employment inside the country, whereas you are the part of the country. There can be two types of outsourcing happening in the business. One is business process outsourcing, जिसके भी हम बात कर रहे थे, जहां पे आप प्रोडक्शन को आउटसोर्स कर रहे हैं, आप सेल्स को आउटसोर्स कर रहे हैं. बट साथ ही साथ नॉलेज प्रोसेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी एग्जिस्ट किया जाता है. व्हाट इज दैट? इज अ फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इन विच knowledge information is gathered or collected by the workers in a different company or by the subsidiary of the same organization, and then this information or these data is given to the company which is एक्चुअली रिक्वायरिंग दैट इंफॉर्मेशन. जैसे इंफॉर्मेटिक्स कंपनीज जो हैं, जो रिसर्च कंपनीज हैं, वो एक्चुअली KPO का पार्ट माना जा सकता है, क्योंकि वो नॉलेज गैदर करके आपको दे रहे हैं, वो आपको डेटा निकाल कर देते हैं, फीडबैक्स निकाल कर देते हैं, आपको इनेबल करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर की नीड के हिसाब से मोल्ड करें, मॉडिफाई करें और री इन्वेंट कर सकते हैं. Now we all know that we have smart cards also, the cards which have Wi-Fi, the cards which have electronic chips. So what is a smart card? It's a card, a pocket size card that is that has integrated circuits and a chip of your personal identification, authentication, and it can do the application processing. So इसका काम क्या है? Why are we using the smart cards? So first they give you credits, or they are ATM cards. There can be fuel cards, there can be mobile phone SIM cards. So ये जितने भी स्मार्ट कार्ड्स हैं ये आपकी बहुत सारी चीजों को सॉल्व करते हैं. जैसे अगर आपके पास फ्यूल कार्ड है तो आप उसे स्वैप करके फ्यूल भरवा सकते हैं. आपके पास ATM कार्ड्स है तो आप कहीं से भी किसी भी ATM से कैश विथड्रॉ कर सकते हैं. मोबाइल फोन सिम कार्ड्स तो हम सभी जानते हैं उसका यूज क्या है. तो इस तरीके से एक छोटा सा कार्ड आपकी बहुत सारी कामों को आसान बना देता है. स्मार्ट कार्ड्स कैन ऑल्सो बी यूज एज इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स. यस, जिस तरीके से आप वॉलेट में अपने आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स कैरी करते हैं, बहुत सारी चीजें कैरी करते हैं. पहले के जमाने में लोगों को बहुत सारे पेपर्स कैरी करने पड़ते थे. अब आज की तारीख में अगर एक सिंगल कार्ड कैरी किया जाए तो आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसी कार्ड में है. सो इट कैन एक्ट एज योर इंफॉर्मेशन वॉलेट, as well as if you have the ATM card, so you are holding your complete bank account into that card. तीसरी बात ये आपकी आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करते हैं. दैट मीन्स इन कार्ड्स में आपके नाम की चिप है, आपके नाम का डेटा है. सो इस कार्ड को यूज करके ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि द पर्सन होल्डिंग द कार्ड इज ओरिजिनल पर्सन और नॉट. देन साथ ही साथ ये स्टूडेंट्स को अगर हम ट्रैक करना चाहते हैं, कॉलेजेस के स्कूल स्टूडेंट्स को या स्कूल अटेंडेंस के लिए भी आजकल यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स.
जो स्टूडेंट आईडी कार्ड होते हैं आप सभी के बने होंगे, और कॉलेज के भी आईडी कार्ड होते हैं। इस तरीके से हम स्टूडेंट्स को भी ट्रैक कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्मार्ट कार्ड्स। हेल्थ कार्ड्स भी हैं जो कि इमरजेंसी मेडिकल इंफॉर्मेशन के लिए काम में आते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाता है और उस पर्सन का स्मार्ट कार्ड है, सो बाय यूजिंग दैट कार्ड वी कैन गेट द वाइटल इंफॉर्मेशन टू सेव द लाइफ ऑफ दैट पर्सन। इसके अलावा इस पे एनक्रिप्टेड डिजिटल टेलीविजन स्ट्रीम्स भी हैं, होती हैं, जिसके थ्रू आप टेलीविजन आजकल जो हमारे सेट टॉप बॉक्स है उनमें भी स्मार्ट कार्ड्स आने लगे हैं। सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है आज की तारीख में स्मार्ट कार्ड्स के। And the last part of the chapter is ATM, that is automated teller machine. We all know it's an electronical bank outlet which allow the customers to complete the basic transactions like withdrawing the money or depositing the money, even withdrawing it from credit card or debit card. फैसिलिटीज क्या क्या है? आप एक डेबिट कार्ड से शॉप कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट के थ्रू शॉप कर सकते हैं। एटीएम मशीन आपको 24/7 विथड्रॉल फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, डिपॉजिटिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। आपको इससे अपने पिछले पास्ट ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भी मिल जाती है। आप इंट्रा बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं, इंटर बैंक ट्रांसफर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द मशीन। यू कैन चेक योर अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी, इवन यू कैन चेंज द पिन ऑफ योर कार्ड्स, यू कैन पे द बिल्स, यू कैन पे द यूटिलिटी बिल्स ऑल्सो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और बहुत सारी और सर्विसेज भी आज की तारीख में एटीएम मशीन्स देने लगी है। So this is the complete chapter number 5, that is emerging modes of business. I hope आपको समझ में आया होगा। अब हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, that is सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस चैप्टर को एक बार ध्यान से अपनी बुक से पढ़ लेना, रीड करना, और अगर डाउट्स हो तो हमारे डीसीएस चैनल पे आप लोग आ सकते हैं। द डीसीएस चैनल लिंक्स आर ऑलरेडी गिवन इन द पोर्टल। जाए वहां पे जाके जितने भी डीसीएस चैनल है अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के, उन्हें आज ही ज्वाइन करें। थैंक यू।